مسئلہ بننے والا ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل جو دیا جا رہا ہے وہ ایک ہتھیار کی طرح آ گیا۔ ہم کب تک دیکھیں گے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کلاس میں ہے، میں بھی کلاسز مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے اس میں ویوو وغیرہ کے لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، کیونکہ اس سے زیادہ دلچسپی کی چیزیں ان کو بازو پڑی ہوئی ہیں، بس خالی بٹن دبانے کی دیر ہے۔ اس کو کوئی فلمی گانا آ جائے گا، کوئی بھڑکتی ہوئی چیز آ جائے گی۔ اس چیز سے اساتذہ کیسے نکلیں گے؟ یہ جو نئے مسائل ہم کو درپیش ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ بہت اچھا ہے کہ ای لرننگ ہم جو ہے سب بچوں کو پڑھائیں گے کریں گے۔ جو مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ کرونا کال میں جو متاثر ہونے والی ہے نئی تہذیب کے اخلاق و اقدار ہے، اس کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا بھی حل آپ اساتذہ کو ہی ڈھونڈنا ہے۔ آپ کو ہی سوچنا پڑے گا، آپ کو ہی بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم بچوں کو کیسے جیسے اس طرف یعنی صحیح تعلیم سے کی طرف گامزن کر سکیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کا موضوع اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ ذوق تحقیق سے ہی آپ چیزیں حل کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ای لرننگ، ای کلاسز کے منفی اثرات کیا ہیں اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے جلد چھٹکارا پائے اور پھر سے ہم پرانے وہ آپسی میل جول، آپسی میل ملاپ کی طرف لوٹ جائیں، جہاں جو خلوص تھا، جہاں اخلاص نیت تھی، ہر وہ چیز تھی جس کی ہم آج کمی محسوس کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ بڑے بڑے اکابرین اور ممتاز ماہرین کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ جناب عابد معید صاحب، جناب پروفیسر احمد خان صاحب، امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان صاحب اور دیگر حضرات کی سرپرستی ہم کو حاصل ہے اور ہر پل یہ ہماری رہنمائی کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے حق میں دعا ہو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کی سرپرستی بھی ہمیں حاصل رہے۔ میں جناب مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ سے معذورانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ ہم کو مخاطب فرمائیں۔ آج کے مہمان خصوصی
پروفیسر مظفر علی شاہ میری صاحب، وائس چانسلر عبدالحق اردو یونیورسٹی کانور آندھرا پردیش، آل انڈیا آئیڈیا ٹیچرز ایسوسیشن کے قومی صدر جناب پروفیسر انور خان صاحب، اور آئٹا کے ریاستی صدر جناب خالد حسین کیسری صاحب، اردو اکیڈمی کے سیکرٹری اور ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد غوث صاحب، ممتاز صاحب، طاہر صاحب، اور قوم و ملت کے مہمانان، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن تلنگانہ یہ ریاستی تعلیمی کانفرنس، جس کا عنوان بہت خوبصورت اور انتہائی معنی خیز ہے، اور اس کے اندر بڑی معنویت اور بڑی جاذبیت اور بڑی عمیق گہرائی اس میں پائی جاتی ہے۔ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی، جس کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج جو ظہور حاجی کا شکوہ ہم جو کر رہے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ وہ ہے ذوق تحقیق کا فقدان۔ تقلید کو جب سے ہم نے اختیار کیا اور تحقیق کا میدان ہم نے اوروں کے لیے چھوڑ دیا، وہی دن تھا زوال کا اور وہی تھا آغاز زوال۔ تو ذوق تحقیق، اب تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ صرف ریسرچر کی نہیں ہے۔ ریسرچر کو بھی تیار کرنے والا ایک ریسرچر ہر وقت موجود رہتا ہے، اسی کا نام ہے معلم، جو بچوں کے اندر پائی جانے والی کیوریسٹی کو ایڈریس کرتا ہے، اس کے عجیب و غریب اور ننھے منھے سوالات کا جواب دیتا ہے، اس کے اندر ذوق تحقیق پیدا کرتا ہے۔ میں ایسے ذمہ دار ترین لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ جب کبھی میں ٹیچر سے کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت دقت پیش آتی ہے۔ روزانہ کئی کتابات ہمارے ہو جاتے ہیں بس اوقات، لیکن ٹیچر سے خطاب کرنے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹیچرز میں قوت سماعت بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر بولنے کا عادی ہوتا ہے، وہ سننے کا عادی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے بولنا ہے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، جو معلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو پیشہ قرار دے دیا۔ اگر میں کہوں کہ پیشہ ہے، اصل تو معلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ قرآن نے کہا کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے رسول پیدا کیے، رسول مبین کو ہم نے اٹھایا، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یعلمونہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں. یتلو علیہم آیات، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے معنی کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ ساری باتیں تلاوت کے لفظ میں مذکر ہیں. لیکن اردو میں جب ہم تلاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بے سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھنا. اس طرح بے سمجھے بوجھے پڑھنے کو قرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور تلاوت کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا اس کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر اور تفکر موجود ہوتا ہے. قرآن میں جتنا زور غور و فکر اور تفکر اور تدبر پر دیا گیا ہے، تحقیق پر دیا گیا ہے، شاید بھی کسی اور چیز پر اتنا زور دیا گیا ہو، اتنا ایمفسس کیا گیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر یقیناً بہت سے پوشیدہ پہلوؤں اور ہمارے ذوق کو چراغ بخشنے کے لیے اور ہمارے ذوق تحقیق کو منویر دینے کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ثابت ہوگا. جو ہمارے اندر بھی ذوق تحقیق کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں میں بھی، ہمارے طلباء میں بھی وہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ٹیچر، معلم دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے بچے کی نگاہ میں. بچے کی نگاہ میں معلم سے بڑھ کر، ٹیچر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں پایا جاتا. میری ایک عملی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میری بہن کی لڑکی اب تو کافی بڑی ہو گئی، بچے والی ہو گئی. وہ انگریزی میں کچھ پڑھ رہی تھی اور غلط پروننس کر رہی تھی. میں نے اس کو سمجھا کر اسے بتایا کہ بیٹے اس کا پروننسیشن ایسا نہیں، ایسا ہے. تو اس نے مجھے برجستہ طور پر اور میرے منہ پر کہہ دیا، آپ کو کیا معلوم ہے، ہمارے ٹیچر نے بتایا. ٹیچر دنیا کا سب سے بڑا انسان بچے کی نظر میں. لیکن اب اس وقت معاشرے میں ٹیچر کیسا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کلاس میں جانے سے پہلے کتنی محنت کرتے ہیں، کلاس میں داخل ہونے سے پہلے کتنی ایمانداری کے ساتھ ہم خود تحقیق کرتے ہیں، اپنے لیکچر کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں. بچہ کلاس میں موجود ہو اور 45 منٹ 50 منٹ کی کلاس کے بعد جب بچہ کلاس سے باہر نکلے تو وہ محسوس کرے کہ میں نے کچھ پایا، میری شخصیت میں تبدیلی آئی، میرے علم میں اضافہ ہوا، میری سوچ میں تبدیلی آئی، آج کی کلاس سے مجھے کچھ ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر کامیاب ٹیچر ہے. وہ ٹیچر اور ٹیچر کو جاننے والا اور اس کو جانچنے والا وہ انسپیکٹر نہیں ہے. انسپیکٹر کو بھی اگر کھڑا کر دیں، جو انسپیکشن کے لیے آتا ہے وہ بھی نہیں ٹک پائے گا کوئی. اصل جانچنے والے تو بچے ہیں، تو بچے تبدیلی محسوس کریں. تو یہ جو ایوارڈ اس وقت دیے جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایوارڈ کوئی
आपकी हैसियत में इजाफा करें, बल्कि ये अवार्ड सिर्फ दूसरे लोगों को तरकीब देने के लिए है। असल जो अवार्ड आपको मिलना है और असल जो रिवॉर्ड मिलना है, जो ईमानदार और दियानतदार टीचर होता है, उसका मद्दे नज़र और मद्दे निगाह सिर्फ ये होता है कि मेरा अवार्ड और रिवॉर्ड इंशाअल्लाह वो आखिरत के मैदान में मिलेगा। एक टीचर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड बच्चा मिले और मिलकर कहे 20-25 साल के बाद मैं पहचान नहीं पाया, कल रात में एक बच्चे से मुलाकात की और करीब आकर उसने कहा कि साहब मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं फला काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी तमानियत है। तो यकीनन ये जो आपका मुकाम है, मर्तबा है, बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा है, और इस बुलंद मुकाम और मर्तबा की हिंदी का लफ्ज़ एक है गरिमा। तो आप बाकी रखेंगे आयटा के अहम तरीन मकासद के अंदर से, आप में से बहुत से लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, आयटा का यहाँ बुनियादी और इब्तदाई जिम्मेदार मैं हूँ। तो आयटा के मकासद के अंदर से हमने सबसे पहला मकसद यही रखा कि असातिज़ा के अंदर इक़दार पैदा किए जाएं, वैल्यूज़ पैदा किए जाएं। तो हालांकि इसमें असातिज़ा के हुकूक़ के लिए लड़ाई, ये तो सब लड़ रहे हैं। असातिज़ा की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनका सुबह से लेकर शाम तक काम यही है, DA कब आया, TA कब मिलेगा और PRC कब होगी, उनका तो बस वही है, ट्रांसफर्स कब होंगे, फला आदमी फला जगह है उसको यहाँ से वहाँ ले आओ, यही पैरवी करना और यही काम है तमाम। वो तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो करते रहेंगे और उनको करना भी चाहिए, लेकिन कोई तो हो जो तालीमी इदारों का माहौल इक़दार पर मबनी बनाए, अच्छे टीचर्स पैदा करे। अगर अच्छे टीचर ना हो तो अच्छी कौम को कैसे तैयार कर पाएंगे? अच्छी कौम की तैयारी और प्रिपरेशन का दारोमदार अच्छे और मेयारी टीचर पर है। निज़ाम के ज़माने में टीचर्स का अपॉइंटमेंट कलेक्टर के अपॉइंटमेंट से ज़्यादा दुश्वार हुआ करता था। जब तक उसका प्रोफाइल और फिर उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड मालूम नहीं करते, उसका अब तक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होता, मौलवी का अपॉइंटमेंट भी होता था। अब इस वक्त तमाम अपॉइंटमेंट्स के दरवाजे, रिक्रूटमेंट के दरवाजे बंद हैं, टीचर रिक्रूटमेंट जारी है। आज भी एक लिस्ट जारी हुई है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 500 टीचर्स के अपॉइंटमेंट की, आज भी आज की तारीख में ये तो जारी है। यानी सब बंद हो गए और एक खुला है। नतीजा ये है कि सब लोग इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, एटीट्यूड हो ना हो, एप्टीट्यूड हो ना हो, उनके अंदर टीचर और मौलिम बनने के जरासीम पाए जाते हों कि न पाए जाते हों, मौलिम बनने के जरासीम होते हैं, वो होना बेहद जरूरी है। ये नौकरी नहीं होती। एक क्लर्क अपनी पूरे कैरियर के अंदर एक 15-20 लोगों को खराब करेगा, फाइल खराब कर देगा, सही नहीं लिखेगा और वो 15-20 लोग परेशान फिरते रहेंगे। एक क्लर्क, एक सुप्रिटेंडेंट। लेकिन एक टीचर अगर खराब हो तो कम से कम 30 नस्लों को खराब करेगा, 30 नस्लों को खराब करेगा। तो उम्मीद है कि आयता के मकासद के आयन मुताबिक इंशाअल्लाह आप हज़रात अपनी तैयारी भी करेंगे और मैदान के अंदर ऐसे टीचर बनकर साबित करेंगे कि एक अच्छी कौम के प्रिपरेशन के लिए, एक जुरातमंद, एक मुहक्किक कौम की तैयारी के लिए आप हज़रात वाबस्ता हो जाएंगे। मैं इस मौके पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना चैप्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन सख्त हालात के बावजूद
ये कॉन्फ्रेंस रखी और अवार्ड का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया। डॉक्टर गौस साहब हमारे दोस्त, एक साथ काम किए हैं, एक साथ बैठा करते थे और फिर प्रोफेसर साहब से हमारी पहली मुलाकात हुई यहाँ। उम्मीद है कि उनके लेक्चर से हमारे दिमाग के कुछ तरीके खुलेंगे और हमें रोशनी हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ का मामला फरमाए। अभी आप मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब को मेरे अल्फाज जमात इस्लामी तेलंगाना को समाप्त फरमा रहे थे और आपके बसीरत अफरोज किताब के बाद अब बारी है आज के कलीदी खुतबे की। ज़ौक़ तहक़ीक़ वक्त की अहम ज़रूरत, और जिस कौम में जमहूरी कैफियत और तकलीदी कैफियत पैदा हो जाती है और वहाँ पर तहक़ीक़ को अहमियत नहीं दी जाती, वो कौम तबाही और बर्बादी के दाने पर पहुँच जाती है। और तहक़ीक़ से बुरी का नतीजा, ज़ौक़ तहक़ीक़ से महरूमी का नतीजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास दानिश्वरों की बोटा तो नजर आती है, लेकिन बसीरत के चिराग मैं समझता हूँ कि गुल हो चुके हैं। इन बसीरत के चिरागों को रोशनी देने के लिए, इन चिरागों में तेल भरने के लिए हमको ऐसे असार की जरूरत पड़ती है जो अपने पूरे जिगर से इन चिरागों को रोशनी देते हैं। और ऐसे असार ख़ातुर रिजाल का दौर जरूर है, लेकिन अभी ऐसी शख्सियतें अमथा नहीं हुई हैं। हमारे दरमियान में ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं और ऑल इंडिया एमिन टीचर एसोसिएशन की कोशिश करती है कि ऐसे बेहतरीन शख्सियतों को आपके सामने लाएं और उनके इल्मी तजर्बात से फैज़ उठाएं और इस्तेफादा करें, ताकि कौमों की तामीर में हम बढ़ चढ़कर अपना किरदार पेश कर सकें। कौमों की तामीर मज़लूमियत के चोले हमको उतार के फेंकना पड़ेगा, शिकायत का लिबादा उतार कर फेंकना पड़ेगा। अब मैदान अमल में आना पड़ेगा। मज़लूमियत से काम नहीं बनने वाला और महरूमियों और मजबूरियों का रोना भी खत्म करना पड़ेगा और तामीरी फिक्र के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। मैं जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बिल्कुल इख्तिराई सोच दी और इख्तिराई और बिल्कुल ही तकलीफ पर मबनी एक टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है। ज़ौक़ तहक़ीक़ वक्त की अहम ज़रूरत। मैं बगैर किसी तमहीद व ताक़ीद के प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब जो आलम उर्दू में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, शेर व अदब और नक़्ल-ओ-नज़र के माहिर हैं और आपके शागिर्दों की एक जगह गंभीर है जो अफ़ताए आलम में फैला हुआ है। मैं भी किसी हद तक आपके अफ़कार से मैंने भी इस्तेफादा किया है, तो इसी तरह से एक रूहानी शागिर्द के तौर पर मैं भी अपने आप को उस दर्जे पे, एक शागिर्द के दर्जे पे ही रखता हूँ। ये हमारी खुशनसीबी है कि प्रोफेसर साहब ने हमारी दावत को कबूल किया और ऐसे नामसार हालात में और कोविड जैसे सिचुएशन में भी आप कर्नूल से यहाँ तक आने की आपने मुसीबत को बर्दाश्त किया और अपनी गुनाहों मसरूफियात के बावजूद हमको टाइम दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप जनाब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के इस कलीदी खिताब के लिए तशरीफ लाएं और हम तमाम को मुस्तफ़िद फरमाएं। जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब, वाइस चांसलर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल, आंध्र प्रदेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास जनाब खालिद हुसैन कैसरी साहब, मेहमानान एजाज़ी जनाब मोहम्मद अनवर खान साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद हामिद खान साहब, सर JIH तेलंगाना, डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना, और मेरे बहुत ही अजीज और मोहतरम दोस्त डॉक्टर आबिद मुनीस साहब, जनाब मोहम्मद यकीमुद्दीन साहब, नायब सदर ऐका, जनाब नाज़िम इजलास से जनाब बीन मुमताज़ अली साहब, सेक्रेटरी
और हमारे फारूक ताहिर साहब, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं उनका एक उस्ताद बन गया है और इनाम याफ्ता साथिया कराम, दीगर साथिया, हमारे शहर सामईन में मेरे बचपन के दोस्त हैं सैयद निसार अहमद और एक और अजीज दोस्त है सूफी शाकिर साहब और नौजवाना में कौम खवातीन व हज़रात, मुझे इस यादगार जलसे में शिरकत करते हुए बेइंतहा मसरत हो रही है, खुशी हो रही है, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का जलसा नहीं है, कोई सियासी जलसा नहीं है, कोई अवामी जलसा नहीं है, कोई सरकारी मीटिंग नहीं है, बल्कि ये असातिज़ा का एक जलसा है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये मेरी बिरादरी का जलसा है, मेरे असातिज़ा का जलसा है, मेरे हम पेशा लोगों का जलसा है। और यकीन जानिए मुझे आपके दरमियान खड़े हुए उतनी ही खुशी हो रही है जितनी एक लंबे सफर के बाद अपने घर को पहुंचता हूँ तो जो खुशी होती है, वही खुशी आप सबके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आइटा के अहदेदारान, अराकीन और ख़ासतौर पर हमारे फारूक साहब और मीर मुमताज़ अली साहब और हमारे मोइज़ साहब, इनका बड़ा इसरार था कि मैं आऊँ। यकीन जानिए ऐसी हालत थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं हेडक्वार्टर छोड़कर बाहर निकलूँगा। लोगों ने कुछ ऐसा दबाव डाला, हुक्म दिया और कुछ इस तरह से उस पर जोर दिया कि मुझे आना ही है। मैं अगर ना आता तो एक बहुत अच्छी महफिल से मैं महरूम हो जाता। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए कि उससे पहले मेरे पेशवा मुखर्रीन ने इस मौजूद की तारीफ से बहुत कुछ कहा है। मेरे लिहाज से आधा खरीदी खुतबा हो गया, खासतौर पर हमेशा आपकी बहुत सारी बातें बताती हैं। मेरी आज की तकरीर का जो मौजू है वो है ज़ौक़ तहरीर, वक्त की अहम ज़रूरत। मौजू का थोड़ा सा मुख्तसर सा ताल्लुक़ कर रहा हूँ। हम इस तकरीर में कुछ सवालात को देखेंगे कि तहकीक क्या है, तहकीक क्यों ज़रूरी है, तहकीक कैसे करें, और आज के जो मौजूदा हालात हैं, सियासी हालात, माशी हालात, तालीमी हालात और उनसे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम उनका सामना तहकीक के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। और आखिर में मैं हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े तहकीक पर मैं बात करूँगा और ये दिखाऊंगा कि किस तरह उनका जो तरीक़े तहकीक था वो आज भी किस हद तक हमारे लिए कारआमद है, फ़ायदेमंद है। अफसोस ये है कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती नहीं है। मैं अक्सर अपने अकाबिर से मिलता हूँ तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि आप लोग तहकीक कैसे करते हैं, मुझे कुछ बताइए, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन तक़रीबन कुरान का एक हिस्सा है जिस हिस्से में मौलाना ने बताया है कि उन्होंने तहकीक कैसे की है बगैर किसी के पूछे हुए। ये बताया है कि उन्होंने तहकीक कैसे की है, कैसे वो तहकीक करते हैं। मेरा ख्याल है उस हिस्से को हमें देख लेना चाहिए। तक़रीबन कुरान के मुक़द्दमे के पहले हिस्से में जो मौजूद है उसे आप देख लीजिए, मैं उस पर भी बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले दो और बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, बुरा मत मानिएगा। अच्छी बात यह है कि हम सब मुहक़्क़िक़ हैं, हम सब तहकीक करते हैं, हर दिन करते हैं। टमाटर खरीदना है तो तहकीक करके खरीदते हैं, तरकारी खरीदना है तो तहकीक करके खरीदते हैं, कपड़ा खरीदना है तो तहकीक करके खरीदते हैं, जमीन जायदाद खरीदनी है तो फिर जमीन और आसमान मिला देते हैं, तहकीक करते हैं, कपड़ा लत्ता जमीन जो भी, और खासतौर पर रिश्ते वगैरह की भी बात नहीं करते, तो बहुत तहकीक करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब मुहक़्क़िक़ हैं, पैदाइशी मुहक़्क़िक़, हमें तहकीक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बुरी
सियासी तहकीक नहीं करते हैं, अदबी तहकीक नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उसकी कोई तहकीक नहीं करते हैं, तो हम मौक़िफ़ हैं, बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ हैं, लेकिन जिसकी तहकीक करनी है वो नहीं करते हैं। ये मैं अर्ज़ कर रहा था। और अगर कर भी लेते हैं तो फर्ज़ मुहाल तो सरसरी तहकीक, वो तहकीक जो मुनज़्ज़म नहीं होती, वो तहकीक जो मुसलसल नहीं होती। तहकीक की कामयाबी के लिए दो बातें ज़रूरी हैं, वो ये कि वो मुनज़्ज़म हो और मुसलसल हो। ये दोनों अगर नहीं है तो फिर हमारी तहकीक कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, इस वक्त मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो है ज़ौक़े तहरीर वक्त की अहम ज़रूरत। इस उन्वान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ज़ौक़े तहरीर और दूसरा हिस्सा है वक्त की अहम ज़रूरत। तो ये दो हिस्से हमारे सामने हैं। मैं पहले हिस्से को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहला हिस्सा जो है उस पहले हिस्से पर हम पहले थोड़ी देर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ज़ौक़े तहरीर की तरफ चलते हैं। देखिए कि वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये देख लें कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, किस ज़माने से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे अतराफ और अतराफ में, और किस तरह हम उन चीज़ों का सामना करें। थोड़ा सा हम अपने ज़माने की कुछ झलकियाँ देख लें, कुछ मनाज़िर देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरह के दौर में जी रहे हैं और किस तरह की तहकीक हमें करनी है। हमारे हामिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने तहकीक को छोड़ दिया, सिर्फ तख्लीक को पकड़े रहे और तहकीक को गैरों को छोड़ दिया। बात बहुत पते की बात करते हैं, बहुत पते की बात कही आपने कि तख्लीक को अपना लिया, और वो भी किस तरह की तख्लीक है जो जानने वाले हैं वो जानते हैं, लेकिन तहकीक को हमने छोड़ दिया। अब आइए ज़माने की मैं कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह की तहकीक हमें करनी चाहिए। तो पहली झलकी ये है कि इस दौर में और कुछ हो रहा हो ना हो, लेकिन निज़ाम हयात बिगड़ रहा है, निज़ाम जिंदगी बिगड़ रहा है, कानून का निज़ाम बिगड़ रहा है, इंसाफ का निज़ाम बिगड़ रहा है, तहजीब का निज़ाम बिगड़ रहा है, तमद्दुन का निज़ाम बिगड़ रहा है, तालीम का निज़ाम बिगड़ रहा है। एक तरह का बिगाड़ है, इधर से उधर तक आप देख लीजिए। और निज़ाम की बात यह है कि एक मर्तबा वो बिगड़ जाए तो फिर उसको दुरुस्त करना, उसको सही रास्ते पर लाने में सदियां निकल जाएंगी। और अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारे रहबरान इस चीज को समझने से हासिल है। ये ज़माना है। मैं आपको एक छोटी नज़्म सुनाता हूँ और उस नज़्म में कितना इशारा है आप खुद देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम खोलकर बयान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नज़्म सुन लीजिए, नज़्म में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस नज़्म का उन्वान है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा 3 लाइटें होती हैं, लाल, हरी और दरमियान में पीली लाइट होती है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक सिग्नल उन्वान है, तकल्लुमी अंदाज में नज़्म लिखी गई है, वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि अब हम राहगीरों की खैर नहीं है, अब हम राहगीरों की खैर नहीं है। साफ लगता है, क्या लगता है साफ, या ट्रैफिक सिग्नल में कोई बड़ी खराबी आ गई है, या ट्रैफिक सिग्नल में कोई बड़ी खराबी आ गई है, या लाल और हरी बत्तियां अपनी अपनी मर्जी से जल रही हैं, अपनी अपनी मर्जी से बुझ रही हैं, या लाल और हरी बत्तियां अपनी अपनी मर्जी से जल बुझ रही हैं, या इस पर बात कीजिए, या जर्द बत्ती अपने महल में बैठकर इन दोनों बत्तियों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, या जर्द बत्ती, आप यहाँ कोई भी रंग बदल सकते हैं, या जर्द बत्ती अपने महल में बैठकर
इन दोनों बच्चियों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तो सवाल यह है कि हमारे सामने पूरा ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया है, पूरा ट्रैफिक सिग्नल खराब है, जाना है भाई। अमीर लोगों की बड़ी बड़ी कारें तो निकल जाती हैं, हम जैसे साइकिल वाले कहाँ जाए, कैसे जाए, कौन आके टक्कर लगा दे। गौर करने की बात है, मेरा ख्याल है इस जमाने का एक मंजर यह है। एक दूसरा मंजर यह है कि आज का पूरा दौर इमेजेस पर चल रहा है, तसव्वुरात में चल रहा है, हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, सिर्फ तसव्वुर है, एक इमेज है। किसी का इमेज छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है, और किसी का एक विश्व रूप लेकर, बहुत बड़ा रूप लेकर खड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है। या तो हम उस इमेज के पीछे चले जा रहे हैं, या फिर उससे इतने खौफजदा है कि उस इमेज के नजदीक भी जाना नहीं चाहते। एक इमेज है, एक इमेज है, और इमेज के पीछे हमारी सारी दुनिया दौड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस इमेज को हम तोड़े कैसे। सवाल यह है कि जिन शीशों में यह अक्स उभर रहा है, जिन शीशों में यह अक्स उभर रहा है, उन शीशों को तोड़े कैसे ताकि हम असली आदमी तक पहुंच सकें। ये बहुत जरूरी है। आप एक सवाल कर सकते हैं कि सारे आज के जमाने ही में क्यों, ये तो पहले भी होता था, पहले भी बड़े बड़े इमेजेस थे, मदरसों के इमेजेस थे, असातिज़ा के इमेज पर मदरसे चलते थे। इब्राहिम खान का मदरसा, दाऊद खान साहब का मदरसा, मदरसे वैसे चलते थे। तो फिर फर्क क्या है? कल भी इमेजेस थे, आज भी इमेजेस थे, तो फर्क है। फर्क ये है कि कल के इमेज में और असल आदमी में ज्यादा फर्क नहीं था, उसके जाहिर और बातिन में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन आज क्या है? आज के इमेज में और असल आदमी में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। इतना बड़ा विश्व रूप है उसका, इतना बड़ा विश्व रूप बन गया है कि हम उसके करीब भी जाने से डरते हैं। और जो लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। इस शीशे को सिर्फ हमारी तहकीक तोड़ सकती है, सिर्फ हमारी तहकीक। एक इश्यू को ले लीजिए आप, उस पर तहकीक कीजिए। मैं इसको फर्ज़े किफ़ाया कहता हूँ। एक इश्यू को उठाइए, उसको एक आदमी उस पर रिसर्च कीजिए, देखिए कि कई चीजें हमारे सामने खुलकर बाहर आ जाएंगी। ये दौर हमारे दौर का बड़ा अलमिया है कि ये दौर यूज एंड थ्रो का दौर है। यानी आप इस्तेमाल करो और फेंक दो। कलम लिखा, नया कलम कर दिया। हम लोग ऐसा करते नहीं थे। एक मरतबा माँ बाप ने कलम दिला दिया तो चौथी पांचवी से लेकर जो 8वीं 9वीं तक चलता था, और उसका क्या हो खराब हो गया तो दूसरा क्या लगा के हम चलाते थे। लेकिन ये यूज एंड थ्रो का जमाना आ गया है, और इसकी सबसे मजमून सूरत है लिविंग रिलेशन की, लिविंग रिलेशनशिप की जो सूरत है, यानी कि इससे ज्यादा यूज एंड थ्रो की इससे बुरी हालत नहीं है। असल चीज ये है कि इसकी वजह से हमारा जो मिजाज बन रहा है, हमारा जो मिजाज बन रहा है वो ये है कि हम रिश्तों की मजबूती को खोते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते मजबूत नहीं है। शायर कहता है एक रिश्ता है रेत पर लिखा हुआ, एक रिश्ता है रेत पर लिखा हुआ। आज शहरों में दोस्ती क्या है? आज शहरों में दोस्ती क्या है? एक रिश्ता है लिखा हुआ। हमें तहकीक करने की जरूरत है कि हम इस जाल से बाहर कैसे आ सकते हैं। ये दौर एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का भी दौर है। लेकिन जब बम फटता है तो उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, उसके असरात दूर दूर तक सुनाई देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज कहीं कोई चीज दरियाफ्त होती है, कोई कोरोना के इलाज दरियाफ्त होता है या कोई मेडिसिन दरियाफ्त होता है, तो आपको 5 मिनट के अंदर सारी दुनिया में उसकी पहुंच जाती है। आज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है हर तरह से। किसी जमाने में मनो सरमा उतरता था, आज नॉलेज उतर रही है। लेकिन हमें जिस हैसियत में भी रहते हो, टीचर हो, हेडमास्टर हो, वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो या जो भी हो, क्या हमें करंट नॉलेज मिलती है? मैं गजल पढ़ाता हूँ, क्या मैं जानता हूँ कि जदीद तरीन नाक़दीन ने गजल के बारे में क्या कहा है? आज साइंस पढ़ाते हैं, जदीद तरीन
फिजिक्स ने क्या कहा है, क्या हमें मालूम है? ये करंट है, ये जो एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का दौर है, इस वक्त हमें करंट नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही चीज है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, हम समझते हैं कि वो किसी लिहाज से, कई लिहाज से हमारे तलबा की क्रिएटिविटी को खत्म करते जा रहा है, हमारे तलबा की क्रिएटिविटी को खत्म करते जा रहा है। ये हम असातिज़ा पर बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी का ऐसा है कि हम उनके अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करें। ये जो निसाब हमारे बनते हैं, जो सिलेबस हमारे बनते हैं, उनकी क्रिएटिविटी के लिए कहाँ उतना हिस्सा रखा हुआ है। तो हमारे पास तमिल के बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने लिखा है, बड़ी अच्छी बात है कि आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, किताबें फाड़ देते हैं। आप कोई किताब लीजिए, बच्चे फाड़ देते हैं। लेकिन हमारे तमिल के शायर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इसका उल्टा कहा है, किताबों को मुखातिब करके कहा है, किताबों होशियार रहो, किताबों होशियार रहो, बच्चों को फाड़ ना देना। देखिए क्या बात है, किताबों होशियार रहना, बच्चों को फाड़ ना देना। मतलब क्या है कि तुम उनकी क्रिएटिविटी को खत्म करो, तहकीक कीजिए कि हम किस तरीके से हम अपने सिलेबस को या अपनी बात को पहुंचा सकते हैं क्रिएटिविटी। इसके लिए बहुत तहकीक की जरूरत है। देखिए आज का एक दौर ये भी है कि हम बहुत दूर हो गए हैं तहकीक से, जैसा कि हमने साहब ने कहा। असल में हमारे पास वो जज्बा और जोश ही नहीं रहेगा कि हम तहकीक किस तरह करें, इससे हमको बचना चाहिए। एक शेर है किसी का, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, कि उम्र भर ख्वाबों की चिलमन से लगी बैठी रही, उम्र भर ख्वाबों के चिलमन से लगी बैठी रही, मैंने सारी जिंदगी हालात से पर्दा किया। ये औरतों के लिए लिखा है, लेकिन ये बात मर्दों पर भी पूरी साथ आती है कि हमने हालात से बहुत पर्दा किया है। एक बहुत ही मजबूत हरकत इस दौर की ये है कि हम बिना सोचे, बिना तहकीक किए कई मैसेजेस हैं जिसको फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। भाई इसमें कई चीजें हैं जो मुहताज के दायरे में आते हैं, कई ऐसे इल्जाम आते हैं जिनका खुदा के पास पूछो तो आपके पास कोई जवाब ना हो। ये भी हमारे दौर की एक बहुत बड़ी मजबूत हरकत है। एक दौर ये भी है जिसकी तरफ हमारे दोस्त ने इशारा किया, डिजिटल एजुकेशन। आप माने या ना माने, आप चाहे या ना चाहे, डिजिटल एजुकेशन तो आने वाला ही है, आके रहना ही है, वही साहब मेरे दोस्त है, मैं से बात करना चाहता हूँ। देखिए कि हो सकता है कि तालिब इल्म के सामने वो मोबाइल फोन हो या नहीं हो, या उसको देख के छोड़ के चला गया या किसी और को चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है, सब करते हैं। लेकिन फिजिकल क्लास में जहाँ बैठते हैं, कितने बच्चे बैठे बैठे जो है सारी दुनिया का सैर करते हैं, सारी दुनिया का सैर कर लेते हैं बैठे बैठे। मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो पता नहीं उस्ताद साहब क्या फरमा रहे थे, हम तो बस मस्त घूमा करते थे अपने। सो जिसको सीखना है वो सीखेगा, वो डिजिटल हो या नहीं तो फिजिकल, लेकिन उसको सीखना है वो सीख कर ही रहेगा। अर्ज करना ये है कि फ्यूचर है हमारा मुस्तकबिल है डिजिटल एजुकेशन। हम असातिज़ा को चाहिए कि इसमें दर्द हासिल करें, इसमें हम महारत हासिल करें और उर्दू को जो है तरक्की देने के लिए, हमारे इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत चाहिए कि इस तरह करना है। सब ये रहा हमारे इसके ज़माने की कुछ झलकियाँ जो मैंने आपके सामने पेश की है। एक बात है तो जल्दी में मैं कहता चला जाऊँगा, और वो इसलिए जल्दी के जो शुरुआत में जो खिरात पढ़ी गई अलिफ लाम रा, उसके ही कुछ बातें थी कि मैं बहस करना चाहता हूँ कि तहकीक हमारी मजहबी मीरास है। ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तहकीक हमारी मजहबी मीरास है, हमारा मजहबी वर्षा है, ये हमारी तहजीब का अटूट हिस्सा है, हमें इसे किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ स्टेज पर से। ये तफक्कुर का जो बार बार हम साहब ने बहुत तफसील से इसका जिक्र किया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ ने जहाँ जहाँ ये तफक्कुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ उसने कहा है कि आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, तो गौर व फिक्र क्या है सिवाय तहकीक की? गौर व फिक्र क्या है सिवाय तहकीक के? गौर व फिक्र का मतलब क्या है? सवाल का जवाब ढूंढना। कब?
कहाँ, क्या, क्यों, किधर, किसे, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का काम तहकीक के हाथ को करती है। अल्लाह ताला ये कहता है कि आप देखो कि अंगूर कैसे पैदा हो रहे हैं, अंजीर कैसे पैदा हो रही है, ये देखो कि आसमान कैसा खड़ा हुआ है, ये देखो कि दरिया में जहाज कैसे तैरता है। यानी एक एक शय पे आपको कहता है कि गौर करो, तहकीक करो, आप रिसर्च कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। अल्लाह के जलवे को आप देख सकते हैं जर्रे जर्रे में, अगर आप रिसर्च करेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे, सिर्फ मैं कोई और बात नहीं करना चाहता हूँ कि इस चीज को अगर आप तलाश करके देखेंगे तो आपको छोटे छोटे जर्रे में अल्लाह का जलवा दिखाई देगा। नहीं उसका मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, परफेक्शन दिखाई देगा। बेदाग तख्लीक अल्लाह ताला ने की है हर चीज की। सिर्फ इस नुक्ते से आप देखेंगे भाई कितना बेदाग बनाया है अल्लाह, कितना बेदाग बनाया है अल्लाह ने। इसी तरह से आप देखिए, फिर आप ढूंढिए कोई दाग किसी स्टाइल में, किसी तकलीफ में, तो फिर देखिए कि आप क्या जवाब आता है। कुरान ने जो कहा है हमारे लिए वही तहकीक है हमारी। और इसी तरह से मुहद्दिसीन की बात आप ले लीजिए, आप क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं हम लोगों ने, कितना रिसर्च किया हम लोगों ने, कितनी तहकीक की है। एक एक हदीस के लिए 40-40 रातें वो सहरा में चलते जाते थे। ये सब रिसर्च है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहते हैं कि उनके पास 2 लाख अहादीस याद थी, जिसमें ज़ईफ भी थी और सही हदीस भी थी। लेकिन जब उन्होंने उनको छांटना शुरू किया तो उन्होंने 7,275 अहादीस का इंतखाब किया। सवाल यह है कि जो छांटने का काम किया था वो क्या है? वो तहकीक है। ऐसे ही छांट दिया कि ये काला है उठा के रखो, ये पीला है उठा के रखो, ये लाल है उठा के रखो, ये नहीं हुआ ना। उन्होंने क्या किया? तहकीक की कि क्या इस हदीस को रखी जाए या नहीं जाए। क्या ये रिसर्च नहीं है? बहुत बड़ा रिसर्च है। हमारे मुफस्सिरीन को ले लीजिए आप, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की आप तफसीरुल कुरान को देखिए, आप पढ़ के देखिए। आप मैंने अभी कहा उसके मुकद्दमे का जिक्र कर रहा था, अल-जिहाद इस्लाम को पढ़ने की रिसर्च की आला तरीन किताब है। आप तर्जुमा कुरान को पढ़ के देखिए, आप सूरह कहफ को पढ़ के देखिए, जो मौलाना मुल्ला माज़ार ने जो तफसीर लिखी है, क्या उसका कोई जवाब दे सकता है? तहकीक के आला तरीन नमूने हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और वो ये है कि इस तरीके से इन लोगों ने आंखों का तेल जलाया होगा और दांतों को पसीना आया होगा। हमारे साइंस की भी बेहतरीन हमारे पास तहकीकात मौजूद है। मैं आखिरी इस पहले को आ रहा हूँ और वो ये है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का उनका तरीके तहकीक क्या था। भाई ये बहुत अहम हिस्सा है आज की मेरी इस तकरीर का, और वो ये है कि देखिए कि आमतौर पर हमारे पास जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने लिखा बहुत है, मगर कहीं ये नहीं बताया है कि वो लिखते कैसा है। हमारे खजानों के खजाने सीनों में चले गए, हमारे यूनानी हकूमत के हकीमों के चले गए, ऐसे ही बताया उन लोगों ने, लिखने वालों ने नहीं बताया। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि मेरा राज क्या है, ये कोई बात नहीं। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने बताया है मुताला कैसे करना चाहिए और फिर तहकीक। हालांकि उन्होंने तहकीक का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई वो सब की सब आज की तहकीक में आती है और जदीद तरीन तहकीक में सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 4-5 बातें होती है, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। तहकीक सिर्फ क्या है? एक प्रॉब्लम को लेना है, एक मसले को लेना है, मवाद इकट्ठा करना है, उसको तरतीब देना है, नताइज निकालना है, राय कायम करना है और उस राय को दलील के साथ पेश करना। तो कुल मिला के यही है तहकीक। आप एक मसला ले लिया आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी 2020 ले लिया आपने। एक मसला आपके हाथ में है, आप समझना चाहते हैं उसको, मवाद इकट्ठा कीजिए। आपको रसायन में मिल जाएगा, आपको अखबार में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, दुनिया भर की जगह पे पूरा मवाद मिल जाएगा। आप उसको ले लिया आपने और लेकर आपने क्या किया कि उसको तरतीब दिया और तरतीब देकर उससे नताइज अखज़ किए। अच्छा ये बात है इसके अंदर, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है।
تو یہ آنکھوں میں پڑے گا۔ اب اس کو اپنے دلیل کے ساتھ پیش کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ سب میں اپنے قوم کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سب میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ایسا سب دعا ہے۔ میں کلاس میں ڈسکشن میں کھڑا ہے میرا، میں بچوں سے بحث نہیں کرتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ لڑتا رہتا ہوں، جھگڑتا رہتا ہوں، سب لوگ جواب دیتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ایسا لڑکا جس کو میں بڑا کن ذہن سمجھتا تھا، وہ لڑکا اٹھ کر اتنا جواب دے دیتا ہے کہ میرے ذہن میں بھی وہ جواب نہیں رہتا۔ میں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذہن میں کون سا جواب کون سا حل ڈالتے اس کی کوئی یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے، ہم کو تحقیق کرنا ہے، کیا پتا ہمارے جو جن مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، ان کا کوئی حل آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ اس کو پیش کریں۔ ایسا ہوا ہے بابری مسجد پہ جب ڈالی گئی تھی تو کوئی اور نہیں، اردو کے ایک افسانہ نگار نے ایک افسانہ لکھا جس سے سارے انگریزی اخبار والوں نے آ کر اسے فون کیا تھا، ہر ایک اردو کا افسانہ نگار تھا، افسانہ لکھا تھا، بہت خوبصورت افسانہ لکھا تھا۔ تو ضروری نہیں سب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دانشوری کسی کی جائیداد نہیں ہے، آپ سب دانشور ہیں اگر آپ خود دیکھ کریں اور آپ سوچ کر آگے بڑھیں گے تو۔ اب دیکھیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے جو مقدمہ ہے اس میں جو لکھا ہے اس کے میں نے 6 نکات نکالے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی کے مسائل کا انتخاب کرو، پہلی پوائنٹ تو یہ ہے، مسائل کا انتخاب کرو۔ دوسرا یہ ہے، بہت اہم نکتہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب تک ان پر کیا کام ہوا ہے اسے پڑھو، اسے سمجھو۔ اس کے بعد لکھا ہے عنوانات قائم کرو، اس کے بعد لکھا ہے نوٹ لو، اور اس کے بعد ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے، اور پھر آخر میں اور پھر سب کو ملا کر جوڑ کر آپ کر دیجیے۔ سب یہ چیز میں یہاں خاص طور پر میں جو کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے ہمارے مسائل سے، ہمارے معاشی مسائل، ہمارے اقتصادی مسائل، ہمارے سماجی مسائل، ہمارے تعلیمی مسائل، ہمارے ادبی مسائل، ہمارے لسانی مسائل، ہمارے مسلکی مسائل، ہمارے محلے کے مسائل، ہمارے گھر کے مسائل، ہمیں دلچسپی لینا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ جب تک ہم نہیں اتریں گے میدان میں، ہمارا ایک مجموعی طور پر اجتماعی طور پر مزاج نہیں بنے گا۔ اجتماعی طور پر مزاج کی ضرورت ہے اس وقت، انفرادی طور پر میں فلسفی بن جاؤں اس سے کچھ ہوگا نہیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ ہوگا کب؟ اس وقت ہوگا جب ہم ایک اجتماعی طور پر یہ سوچنے لگیں کہ بھائی ہم کن مسائل سے گزر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر بولے آ کر نماز پڑھنی باہر آئے بھائی دیکھو اس طرح کا ہے، میں نے اس طرح سوچا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیسے کیا جائے، وہ کیسے۔ یہ اجتماعی شعور کی ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے، اور یہ شعور سوائے اچھی اور گہری تحقیق کے ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے لیجیے، آپ مسائل کو لیجیے پہلی بار، تو آپ مسائل میں دلچسپی لیجیے۔ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو بہت ہم کہتے ہیں فلسفی ہے، یہ بڑا دانشور ہے، یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، بہت بڑا وہ فلسفی ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ مسائل کو لیتا ہے، اس پر ذرا غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے جو حل سمجھ جائے گا حل پیش کرتا ہے۔ ہم وہ نہیں کر پاتے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے، تو دانشوری کسی کی جائیداد نہیں ہے، تو ہم بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز بہت عمدہ بات تفہیم القرآن میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو تم پہلا کام یہ کرو کہ اس پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اکٹھا کرو۔ ان کے جملہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھ لیجیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید
लिटरेचर का गहरा मुताला करके वाज़ेह तौर पर ये मालूम कर ले कि इस मसले के बुनियादी निकात क्या है, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कर ले। इंसान ने अब तक इस पर क्या सोचा है और क्या समझा है, क्या और तस्किया तलब उमूर है, ये बहुत अहम है। तस्किया तलब उमूर है, दुनिया ने बहुत कुछ सोचा है लेकिन कहीं छोड़ दिया है, तो आप उन पॉइंट्स को निकालिए, उसके बाद जाकर देखिए कि इंसानी फिक्र जाकर कहाँ अटक जाती है। ये जो बल्ब है इसका इजाद करने वाला कौन था? थॉमस। इसने बड़ा गोल्डन रूल लिखा है बहुत वर्षों पहले। इसने लिखा है कि तुम अपनी तहकीक वहां से शुरू करो जहां दुनिया ने छोड़ दिया है। तुम अपनी तहकीक वहां, यही बात मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि जब तुम्हारे हाथ में कोई मसला आ जाए तो सबसे पहले तुम उसे इकट्ठा करो कि अब तक क्या सोचा। इसकी बड़ी हिकमत है। जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसी वक्त पर आपको पता चल जाएगा कि कहां से आपको काम शुरू करना है। तीसरी बात यह है कि उन्वाना कायम कर लीजिए, ये कहा लिखा है और उन्होंने ज़ैली उन्वाना का भी जिक्र नहीं किया है लेकिन उन्वाना का जिक्र किया है उन्होंने। अच्छा, ये मैं इसको जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुरान शरीफ में क्या तफसील कुरान का मुकदमा भी देख सकते हैं जाकर। लिखा है उन्होंने कि ये समझना है आपको कि अल्लाह ताला की नजर में पसंदीदा इंसान कौन है। पसंदीदा इंसान कौन है अगर आपको ये समझना है तो कहते हैं कि एक नोटबुक लो जिसमें एक सफे पर आप लिखिए पसंदीदा इंसान और उसके बिल मुखातिब नापसंदीदा इंसान। अब आप कुरान पढ़ना शुरू करो, जहां पसंदीदा इंसान का हुक्म आता है वो आयत नोट कर लो और जहां नापसंदीदा का आता है वो एक आयत उधर नोट कर लो। इसी तरह पूरे आप देखते चले जाओ। अब आप मुखातिब करके देख लो कि अल्लाह क्या चाहता है। तहकीक का क्या खूबसूरत तरीका बनेगा, बड़ा खूबसूरत तरीका बयान किया है। उसके बाद इसी तरह के एक और कि इंसान कामयाब किस तरह हो सकता है, नाकाम किस तरह हो सकता है। आप एक सफ़े पे लिख लीजिए मूजिबात फलाह और एक सफ़े पे लिख लीजिए मूजिबात खुसरान। नुकसान क्या होगा आपका और फायदा क्या होगा नोट करते चले जाइए। और उसके बाद लिखते हैं, मैं ये भी पढ़ देता हूँ, इसी तरह से अल्लाह हाज़िर क़यास अक़ाइद, अखलाक, फराइज़, माशरत, तमद्दुन, मईशत, सियासत, कानून, तंजीम, नज़्म हयात, सुलह, जंग और दूसरे मसाइल जिंदगी में से हज़रत मौलाना का कौल है। दूसरे मसाइल जिंदगी में से एक एक के मुताबिक कुरान की हिदायत को नोट करता जाए। मैं इस पर एक और चीज कहना चाहूंगा, ये पूरे आप दो पेज पे लिख लीजिए, पूरी किताब आप रख लीजिए। कुरान एक रन एक वक्त पढ़िया और जिस जगह जो आयत आपको लिखती है वो आयत आप पकड़ कर लिख लीजिए। देखिए तहकीक का क्या अलग तरीन नमूना आपके सामने आता है। उन्मानात कायम करना है। इसको जदीद जो रिसर्च है उसको अपने अंदाज में कहता है, इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह लिखा हूं कि रेफरेंस नुक्ता। रेफरेंस नुक्ता यानी कि आप एक नुक्ते को ले लीजिए और उसके बाद आप रेफर कीजिए, किताबों को रेफर कीजिए, गूगल को रेफर कीजिए, अपने दोस्तों से रेफर कीजिए, अपने असातिज़ा से रेफर कीजिए और जो मालूमात आपको हासिल हो जाए वो सारी की सारी मालूमात आप उसको इकट्ठा करते जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहद की मक्खी क्या करती है, फूल पे बैठकर रस निकालती है, उसके आगे रोटी बनाती है। रिसर्च स्कॉलर को इस तरह होना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, प्रोफेसर तनवीर अहमद अलवी। मैंने उनसे एक मरतबा ऐसे ही पूछा था कि साहब मैं डिग्री कॉलेज का लेक्चरर हूँ लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या करना है मुझे। तो उन्होंने वो उनकी आदत थी, आदमी कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, लड़का और औरत कितनी भी बड़ी हो लड़की ही कहते थे, लड़के आ इधर बैठ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक पेपर लिया और पेपर में दरमियान में एक नुक्ता बनाया और उसके बाद कहा कि देखो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब आपने एक पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए कि नई तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़बान का क्या रोल है। ये हमारी पॉइंट है।
अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक दायरा बनाया, कहा कि देखो ये तो तुम्हारा पहला इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक और दायरा बनाया, कहा कि तुम्हारा दूसरा इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक तीसरा दायरा बनाया, कहा कि तुम्हारा तीसरी मालूमात है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह का एक उन्होंने एक फिगर बनाया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी अगर बेहतर बनानी हो तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रखो, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रखो। और हम एक घर से निकलो, सुबह उठो तो तुम्हारे जहन में 10-15 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए कि इसके बारे में आज क्या नई मालूमात होगी, उसके बारे में क्या होता है। इसमें हिकमत यह है कि जब आपका जहन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा तो फिर खुद ढूंढना शुरू करेगा कि नहीं चलो आज इसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा। लेकिन यहाँ आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है तो फिर आपका मुताला बेकार है, आपकी बातचीत बेकार है, आपका यूनिवर्सिटी में जाना बेकार है, आपका क्लास लेना बेकार है, क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। मुझे अगर बताना है कि भाई गजल में कितने अखलाकी शेर है, मैंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रख लिया तो फिर मैं देखता हूँ कि कहां से मुझे वो अशार मिलेंगे जिनको मैं कोट कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस का खेल है जिसको मौलाना मौदूदी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इमारत का कहा है। और आप तहकीक करना चाहते हैं तो तफहीमुल कुरान का सिर्फ वो हिस्सा रोजाना एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आपके अंदर तहकीक का शौक कैसे पैदा होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है नोट लेने वाली, बगैर आपके नोट लेने के आप कोई चीज तहकीक कर ही नहीं सकते। कितने लोगों की आदत है मुझे नहीं मालूम, आपको कोई नया शेर मिला नोट कर लिया, कोई नई बात मालूम हुई नोट कर लिया, कोई नई खबर मालूम हुई नोट कर लिया, कोई नई हिकायत मालूम हुई नोट कर लिया, कोई हदीस मालूम हुई नोट कर लिया। नोट करना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, मुहक्किक के लिए एक नोटबुक और एक कलम बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मछेरे की जाल जरूरी है। अगर बगैर जाल के मछेरा समंदर में जाता है तो बेवकूफी करता है। हम पढ़े लिखों के पास एक नोटबुक, एक कलम हमेशा होना चाहिए और जहां जब जो जैसा ख्याल आए आप उसको नोट करके रखना चाहिए, आपके जहन में भी आएगा। किसी ने पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके जहन में भी कई बार ख्याल आता होंगे, बहुत अच्छा ख्याल आया होगा किसी के लिए, कोई बात नहीं, किसी बात के लिए, लेकिन आप उस ख्याल को रद्द कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस ख्याल को क्यों रद्द करते हैं? नहीं, अपना ख्याल, कोई ख्याल आया कि नहीं हमको ऐसी तकलीफ करनी चाहिए, जैसे मुझे ख्याल आया कि ज़ौक़े तहक़ीक़ वक्त के जरूरत है, ख्याल आया और मैंने उनसे कह दिया तो मैं रद्द कर देता। आपको ख्याल आता, आप रद्द कर देता। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों रद्द करते हैं? ख्याल आया अच्छा सा लेकिन रद्द कर दिया। उसकी वजह है कि वो हमारा ख्याल है। हम सिर्फ इसलिए रद्द करते हैं कि वो हमारा ख्याल है, इसलिए हम रद्द करते हैं। अगर हम अपनी इज्जत आप नहीं करेंगे, अगर हम अपने ख्याल की हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया क्यों करेगी? अच्छा, होता यह है कि फिर वही ख्याल कोई दूसरा आदमी खूबसूरत से तोहफे के तौर पर लाके आपके सामने पेश करता है और आप शर्मिंदा हो जाते हैं। पहले तो हमें अपनी आप इज्जत आप करनी है, हमारे ख्यालों को इकट्ठा करने की इस वक्त बहुत जरूरी है। और एक बात अर्ज करूं कि एक बड़ा अच्छा जुमला चलता है हमारे जो रिसर्च करते हैं उन लोगों में, और वो ये है कि डाटा यानी कि जो मवाद इकट्ठा करते हैं उसको डाटा कहते हैं। तो डाटा इज आयल, ये जुमला है, ये सुथरा है। डाटा इज आयल। आयल क्या है? तेल। तेल से मुराद तेल नहीं है, बल्कि यहाँ तेल से मुराद वो तेल है जो अरब ममालिक में निकलता है, जो लाखों डॉलर्स में बिकता है, वो आयल है। तो उनके पास तो वो आयल है, लेकिन हम पढ़े लिखों के पास एक ही आयल है जो हमने मवाद इकट्ठा किया है, वही डाटा हमारा आयल है। हम लाखों डॉलर में बेच सकते हैं। डाटा इज आयल। और ये डाटा आप उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक
सवाल इकट्ठा किया, अब तरतीब दीजिए उसको, अच्छे से तरतीब दीजिए कि कौन सी चीज नहीं। तरतीब देना क्या है, वो एक के नीचे रखना नहीं है, बल्कि समझना है कि हमने जो इकट्ठा किया है वो मवाद है क्या, वो मवाद है क्या, उसको आप समझते हुए जब आप उसको तरतीब देंगे, उस तरतीब देने में, उस समझने में वो मसला जो आपने देखा था उसका हल निकल आएगा। मौलाना मौदूदी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आपको कुरान पढ़ते हुए कहीं आपको खटक हो जाए, कहीं आपको झिझक हो, कहीं कोई सवाल उठे, तो आप घबराइए नहीं, आप उस सवाल को नोट करके रखिए और आप कुरान पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह कुरान खत्म होने तक आपको उसका जवाब मिल जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, तरतीब देते रहना चाहिए। तो उस तरतीब के दौरान में, उस समझदारी के दौरान में उनका हल भी निकल आता है, फिर हम उस हल को देख लेते हैं और आखिर में उसको करना है। और ये बहुत जरूरी काम उन्होंने लिखा है कि भाई आप फिर सबको मिलाकर जोड़ देने से नक्शे जिंदगी किस किस्म का बनता है और करना है, यानी आपको राय कायम करना है। हम इतनी बड़ी तहकीक करते हैं, क्यों करते हैं, हमको अपनी राय कायम करना है। भाई छोटी सी छोटी बात, आप एक अखबार पढ़िए लेकिन अपनी राय कायम कीजिए, बगैर राय कायम किए कि आप अखबार को नीचे मत रखिए। ये तो मुताले की तौहीन हो जाएगी। आप पढ़िए, आपकी राय गलत सही, लेकिन राय कायम कीजिए। एक खबर आपने पढ़ी, उसको अपनी राय कायम कीजिए। साहिब राय बनना जरूरी है हमको, आप में से हर आदमी साहिब राय बनना है, क्योंकि हमें एक इज्तिमाई मिजाज बनाना है। सिर्फ एक आदमी का कोई जो है बड़ा बन जाना नहीं है, बल्कि इज्तिमाई मिजाज बनाना है। तो राय ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तरीके तहरीर की जो बातें बताई थी उसका मैं थोड़ा सा पेश करा था आपके सामने। और आखिर में मैं अपने भाइयों से एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें किसी तरह की इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी तरह का एहसास कमतरी की कोई जरूरत नहीं है। हम उर्दू के टीचर हैं, इसलिए एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए एहसास कमतरी में मुब्तला है, या हम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाते हैं, इस तरह का एहसास कमतरी में मुब्तला है। हरगिज़ होने की जरूरत नहीं है। मैं जब तमिलनाडु में काम करता था तो वहां पर एक एलिमेंट्री टीचर आते थे जिससे मैं हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक एलिमेंट्री टीचर जो सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ाते थे। हम लोग अक्सर नमाज में मिलते, जब उनको पता चला कि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वो कहते मुझसे कि आप एक किताब ला के दीजिए, मैं फला किताब पढ़ना चाहता हूँ। मैं किताब लाकर उन्हें देता, 2 दिन के बाद आते और बहस करते, मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाता था। एलिमेंट्री स्कूल के टीचर, एलिमेंट्री स्कूल के टीचर, भाई आपका ज़ौक़ मुताला आपके साथ है, ये किसी की जायदाद है क्या कि यूनिवर्सिटी के टीचर ही के पास रिसर्च हो, जायदाद है, लिखकर लाए हैं, बल्कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है आजकल। मैं आपको एक और बात अर्ज करता हूँ, तालीम में किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं। आप ऑनेस्टी से काम करते हैं, ये बड़ी बात है। मैं आज वाइस चांसलर की हैसियत से मैं इस स्टेज से बोलता हूँ कि मैं आज भी मेरे यूनिवर्सिटी में मैं जो बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते हैं मैं उनसे अलीफे पढ़ाता हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ। पूरे लॉकडाउन में 2 महीने मैंने अलीफे पढ़ाया, अलीफ और रात, जी और पेंटू वगैरह पढ़ाया। मुझे कुछ नहीं आया, मैंने आओ उर्दू सीखे बताया, आओ उर्दू सीखे, उसमें अलीफे हैं। हमारे पास दोस्तों ने कहा यार तुम प्रोफेसर हो, तुम कैसे करते? मैंने प्रोफेसर हूँ इसीलिए पढ़ाऊंगा, प्रोफेसर हूँ इसीलिए पढ़ा रहा था, क्योंकि एक क्रिएटिविटी के साथ आपको पढ़ाना चाहिए। और मैंने ये तरीका नहीं सिर्फ अलीफे पढ़ाने के, मैं 10-15 लहजे में जानता हूँ। एक मरतबा मेरे पास अमेरिका से एक लेडी आई थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि हुरूफ तरजीह हिंदुस्तान में कैसे पढ़ाते हैं। तो जानकर हैरान देखी कि इतने तरीकों से पढ़ाया जा सकता। मैं अभी बिल्कुल, मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, हम लोगों ने घर में एक बोर्ड लगाया है और उसकी शूटिंग करता रहता है, अलीफे पढ़ाता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, और मैं बहुत जल्द उसको यूट्यूब में डाल रहा हूँ।
आइए, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इसमें, और हमें किसी तरह के इस मुआलजे में नहीं रहना चाहिए कि आपसे बड़े जो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, वही असातिज़ा है, हम नहीं हैं। आप बुनियादी असातिज़ा हैं, मेरी तरफ से बुनियाद असातिज़ा हैं, और आपकी जिम्मेदारी जितनी है उतनी जिम्मेदारी शायद हमारी भी नहीं है, क्योंकि आप जहन बनाते हैं, बना कर हमारे पास इसी तरह की कोई शर्मिंदगी की, कोई एहसास कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। आप सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप सब बहुत अच्छे असातिज़ा हैं, आपकी दुआएं बच्चों की दुआएं आपको हमेशा रखते रहेंगे। सब मैं एक वाकया मैं अभी बोलकर बातें करता हूँ। मैं एक सेमिनार में गया था एक जगह पर, तो वहाँ जुमा की नमाज देरी हो गई, तो हम बहुत दूर चले गए जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। हम नमाज पढ़कर बाहर आए तो किसी ने कहा कि आपके जो उस्ताद है एलकेजी स्कूल के, वो बैठे हुए हैं। मैंने कहा साहब उस वक्त मैं 60-65 साल 65 साल का हूँ, मेरे उस्ताद ने कहा नहीं है। तो नमाज के बाद हम इंतजार करते थे, तशरीफ लाए, मेरे उस्ताद हैं, हमारे जो बैठे हुए दोस्त के उस्ताद, तो वो आए और आकर जो है, हालांकि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं सर में, तो आए सामने सीधे क्या रे मुजफ्फर कैसा है, बस यही कहा। और वो 85 साल के हैं। एक उस्ताद की मोहब्बत को देखिए आप, कैसे याद रखा है उन्होंने। हमारे दोस्तों ने हमारा फजला मुकर्रम, हमारे सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी, वो मेरे बात में करती है, तुम्हारे बाल क्या बचपन से सफेद थे, तो सब बता दिया। ये मोहब्बत होती है इंग्लिश स्कूल के टीचर की और उसके उस्ताद की। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और इसमें एहसास है, मैं आप तमाम लोगों को नमाज की मुबारकबाद देता हूँ, और एक शेर आप लोगों के लिए पेश करके अपनी जगह देता हूँ। हाबिल अजमली का शेर है ये। बहुत बीमार थे वो, और पाकिस्तान चले गए थे, बहुत अपने दिल की बीमारी की वजह से ज़्यादा दिन जिए नहीं, लेकिन उनकी शायरी में जो एतमाद है, जो हिम्मत और हौसला है जीने का, वो बहुत खूबसूरत था। उनका एक शेर आपकी नजर करता हूँ तमाम असातिज़ा की, और वो ये है कि जी रहा हूँ इस एतमाद के साथ। शायर कहता है कि जी रहा हूँ इस एतमाद के साथ, जिंदगी को मेरी जरूरत है। माशाल्लाह, ऐसे मौक़ों पे जब आदमी के पास किसी की सताइश की लफ्ज़ ना हो, तो उर्दू शायरी बहुत ही बेहतरीन काम अंजाम देती है। गालिब ने फरमाया था, देखना तकरीर की लज्जत के दोस्त ने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। सब आपकी कही हुई बातें हम यहाँ पर अपने जहनों में गिरा बांध कर ले जाएंगे, इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हम आप तमाम असातिज़ा यहाँ पे आपके मशहूर ममनून हैं कि आपने इतनी दूर का सफ़र बर्दाश्त किया, सफ़र की मसाइल बर्दाश्त की, और हमको बड़ी ही मुफीद और कारगर बातें बताई। उस्ताद वो होता है जो सीखता है, जिसके पास सीखने का जज्बा होगा, वो सिखाने का जज्बा उसमें पाया जाएगा। उस्ताद तब तक उस्ताद है जब तक वो तालिब इल्म रहता है। जब तालिब इल्म उसके पास सीखने का जज्बा बंद हो जाएगा, सिखाने का जज्बा भी कम हो जाता है। प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहरी साहब, वाइस चांसलर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल आंध्र प्रदेश, आपसे मुखातिब थे। मैं आप तमाम की जानिब से ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन रियासत तेलंगाना की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले एक दो चार गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक किताब औसाबे साहिब गुलजार हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो मोहतरमा गौसिया बाटी की तहरीर करता है, उसकी रस्म इजरा मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, मोहतरम अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के हाथों अमल में आएगी। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि बड़े ही इत्मीनान से तशरीफ रखें, प्रोग्राम को अफरा तफरी का शिकार न होने में,
और तकसीम अवार्ड के वक्त भी सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुका है। एक सदारती तकरीर बाकी है, उससे पहले सदारती तकरीर से पहले मेहमानान को यादगार तोहफे पेश किए जाएंगे। और उससे पहले मैं एक ऐलान जो उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब ने गुजारिश की है कि 17 नवंबर इस महीने की 17 तारीख को तेलंगाना के अजला में रोशन सितारे और जो कौमी ज़बान है, जो उर्दू एकेडमी के जरीदे हैं, उसकी मेंबरशिप के लिए एक मुहिम पूरी रियासत में चलाई जाएगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसकी रुकनीत को हासिल करने की कोशिश करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। इसके अलावा अरूजदानी का एक कोर्स जो होगा, जो शायरी के जो फन होता है शायरी का, वो फन की बारीकियों को सिखाने के लिए बहुत ही अहम है। उसके लिए एक 6 लेक्चर्स का एक सीरीज का एहतमाम किया गया है, वो ऑनलाइन रखा गया है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन, जो खास तौर पे जो उर्दू ज़बान के असातिज़ा है, उनको तो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना ज़रूरी ही है। इसके तरफ भी आप लोग तवज्जो दें। मैं अब हमारे मेहमानान की खिदमत में यादगारी तोहफे पेश करने के लिए जनाब खालिद हुसैन कैसरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी साहब, वाइस चांसलर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी कर्नूल की खिदमत में यादगारी तोहफा पेश करें। मैं मोहतरम प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो एक यादगारी तोहफा मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की खिदमत में पेश फरमाएं। हम छोटे मीर मुमताज अली साहब से गुजारिश की जाती है कि वो यादगारी तोहफा डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के मदद में पेश फरमाएं। और जो फोटोग्राफी में मसरूफ अशखास हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। मैं फिर से एक मरतबा प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी साहब को तकलीफ दूंगा कि वो डॉक्टर आबिद मोइन साहब, मुमताज फिजिशियन, वो मिज़ानिगार की खिदमत में यादगारी तोहफा पेश फरमाएं। थोड़ा शामिल रखिए। सर, प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी साहब से मुआदिमाना इल्तिमास है कि वो यादगारी तोहफा प्रोफेसर अहमद खान साहब शुक्रिया सर, तशरीफ रखिए। मैं और एक खूबसूरत एक तकरीब है साहिब गुलजार हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहरीर करदा मौसिया बेगम गुलजार साहिबा की एक छोटा सा किताबचा है। इसकी रस्म इजरा मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना अंजाम देंगे। आप तमाम से मौसिया को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शेनशिन पर तशरीफ लाएं। हमारे लेडी कन्वीनर ऑल इंडिया आइडेंटिटी टीचर एसोसिएशन तेलंगाना की असमतुद्दीन साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि डैश पर तशरीफ लाएं। जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब
ذمہ دار شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس میں تشریف لائیں. آپ یہی مقیم ہیں؟ کون والے او بھائی صاحب صاحب گلزار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ غوثیہ بیگم داٹی کے نام سے مشہور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن نے نمونہ قرار دیا، اور آج کے حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا. میں اس کتاب کے افتتاح کے موقع پر میں اسے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے. آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا کسی کو کسی کا امتحان منظور ہے؟ آپ یہ کتاب یہاں پہ صرف تقسیم عمل میں آئے گی. اگر کسی کو نہیں ملتی ہے تو بعد میں جاتے ہو کوارٹر سے حاصل کر لیں. میں پروگرام کی یہ آخری تقریر، صدارتی تقریر جناب خالد حسین فیصلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شاہمیری صاحب، وائس چانسلر فی الحال یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش، تمام مہمانان اعزازی، ریاستی سیکرٹری جناب ممتاز علی صاحب، ریاستی کمیٹیوں کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں، آئیڈا کے نائب صدر، سیکرٹری، ضلع صدور سیکرٹری، اور خاص طور پر آئیڈیل ٹیچرز ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے میرے محترم ہم پیشہ اساتذہ صاحبین. اس موقع پر مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پروگرام کچھ دیر سے چل رہا ہے اور میں اپنا پورا وقت ہرگز نہیں لینے والا ہوں، کبھی بھی نہیں لیا تھا. 2-3 باتیں جو بہت اہم ہیں جسے میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ کہ آج ہم نے پروفیسر مظفر
मुजफ्फर अली शाहमेरी साहब को यहाँ मौजूद किया था। मेरा एहसास है आप तमाम हजरात को भी जो 4-5 साल से मुस्तकिल हमारे इन प्रोग्रामों के अंदर या आइटा के दीगर प्रोग्रामों के अंदर शरीक होते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि आइटा के मकासद क्या हैं और फिर बहुत सारी तफसीलात, हमारा दस्तूर, हमारे फर्ज और प्रोग्राम, हमारी मिलकाती किताब, ये तमाम चीज़ें आपके पास है। दो बातें हम हमेशा करते रहते हैं, वो ये कि आइटा दरअसल असातिज़ा को पेशे से वाबस्तगी का एहसास दिलाना चाहती है। नंबर 1, सिर्फ एक बात, पेशा वाराना वाबस्तगी कि आप टीचर हैं, मैं टीचर, मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं टीचर हूँ। दूसरी चीज, जदीदियत से आगाही। ये दो काम आइटा ने पिछले 6 सालों के दरमियान किए। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमने 6 सालों से ऐसा इसलिए किया कि हम समझते हैं कि ये जरूरी था, और आज प्रोफेसर साहब ने, बीसी साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये बात साबित भी की कि इनका जरूरी भी है। दूसरी अहम चीज जिस पर मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज हमने एक मोतबर, आलादर, फसील नजर और अजीम शख्सियत से इस्तेफादा किया। खास तौर पर आपकी जो बात जो मुझे बहुत याद रहेगी वो ये है, तहकीक हमारी जो है मजहबी मीरास है। तहकीक हमारी मजहबी मीरास, अगर हम मुसलमान हैं तो तहकीक के बगैर मुसलमान ही नहीं है। ये बहुत अहम चीज थी जो इस मौके पर मैंने सीखी है, और मैं याद रखूंगा, अपने स्कूल में भी लिखूंगा और अपने बच्चों को भी हमेशा बताता रहूंगा। और एक चीज जो आपने अपने लेक्चर के खुलासे के तौर पर रखी थी वो ये है कि ज़ौक़ तहक़ीक़ या ज़ौक़ मुताला, जो कुछ भी आप इसे कह लें, ये मुताले के बाद इसका फहम हासिल करना और मौलाना मोदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहा राय कायम करना। कहीं को पढ़ा, कैसे पढ़ा, टाइम गुजारा गया, मालूम ही नहीं। तो आपने जो मुताला किया है और उसका फहम हासिल किया है तो राय कायम करना जरूरी है। और आपने जो अल्फाज कहे हैं ये मुताले की तौहीन है कि आपने राय ही कायम की। और ये जो है असल में मैं आपसे आज जिन बातों को सीखा हूँ और आपको भी ताज़ा रखना चाहता हूँ कि ये बातें मेरे तमाम रफ़ा अपने साथ बांध कर ले जाएं कि राय कायम करना, इस हद तक आप अपनी बात को, अपने मुताले को जारी रखें और आप ऐसे काम करें ताकि उसका फायदा हासिल हो। आप तो बातें और आखिरी में मैं ये भी करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नमूना मानते हैं हर मामले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे आपके अवार्ड के ऊपर भी हमने हमेशा आगे भी आया, यही अवार्ड के ऊपर भी रखेगी कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कुछ कहा था मेरे आका ने। आपकी इत्तला के लिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम हैं, शके नौज़ुबिल्लाह, मोहब्बत है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ ऐसे बहसीत मुअल्लिम अंजाम दिया था वो ये था कि आपने तालीमात को खुद कशिश बनाकर पेश किया था, उसे सादा और आसान फरमाया था। आप अगर टीचर हैं और आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आप अपने बच्चों के अंदर तालीम के मामले में उसे मौसर अंदाज में पेश करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कीजिए, उसे सादा और आसान बनाइए, यही सुन्नत। आप पूरी तरह इस बात की तहकीक कर सकते हैं। और प्रोफेसर साहब की आज की तकरीर में मुझे मेरे अपने इन जज्बात के बारे में यकीन दहानी करा दी। इन सच आपके आप की सारी तालीमात, आप का सारा तरीक़ा मौसर अंदाज में पेश करना, सादा तरीके में पेश करना, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, बिल्कुल करे। ये चीज जो है, अब हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे सारे मसाइल जो है, हमारी जितनी जो है तवज्जो है, हम वैसे थे टीचर 50 मुतरगाहों में, आज भी फिर कह रहा हूँ, एक मुअल्लिम की किताबे जिंदगी के सरे वरक़ पर इल्म नहीं मोहब्बत का उन्वान लिखा होता है। वो अपने आप से, अपने इल्म से और अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक मुअल्लिम के हिस्से से आपके अंदर कम से कम इतने जज्बात तो होने ही चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम मुअल्लिम क्यों हैं? और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी फिर दोहरा रहा हूँ, अपने रफ़ा से मौसर के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है। एक मतलब सोच लेते आप कैसे कह सकते हैं बात, आप पढ़ते नहीं है तो पढ़ाते कैसा है? ये सवाल मेरा है कि आप पढ़ते नहीं है तो पढ़ाते क्यों है?
पढ़ाते कैसे। और मैं हमेशा आपसे कहा हूँ कि हर वक्त, अभी शराब की बात की थी, अभी तेल की बात भी की थी प्रोफेसर साहब ने, सुनिए डेट वाइज ऑयल, इतने फकीर मत बनिए कि आपके पास कोई आए ही ना, बहुत अमीर बन जाइए। इस ख्वाब को बहुत जरूरत है, बहुत फकीरी की तरफ जा रही है ख्वाब। आप इसे अमीर बना सकते हैं, मैं इसे अमीर बना सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में कुछ बातें सीधा सीधा मैंने आपके सामने रखी, और खाली ऐसे नहीं रखी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मौसर तालीम दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा आम अंदाज में समझाते थे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ही नहीं, साल हर साल से जो 33 साल सर्विस जो गुजारते हैं, इस 33 साल के अंदर आपके अंदर एक खूबी पैदा नहीं हुई तो कल खुदा के पास क्या जवाब दोगे? इन 33 सालों के बाद और कौन सा वक्त आपके पास बचता है जिसमें आप नेकी करोगे? और सलाहियत होनी ही चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। एक आखिरी बात इन अवार्डीज के एहतराम में मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी हमने 2-3 मरतबा, 4-3 मरतबा है अवार्ड्स हम दे रहे हैं। हम अवार्ड जो है लोगों से क्या कहते हैं, दरख्वास्त में लेकर नहीं देते। हमारे तमाम रुतबा के अंदर इतनी वसीउ नजरी है, इतना बेहतर दिल ये रखते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि वो देखें कि वाकईतन जो शख्स बहुत बेलौस अंदाज में काम कर रहा है उसे तलाश करें, उसे हम देंगे, कोई देना है। ये सारे मोहतरम लोग हैं जो आज अवार्ड यहाँ ले रहे होंगे। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि इंसानी कोशिशें बिल्कुल बेदा होंगी, हो सकता है हम अपने तौर पर, मैं कह रहा हूँ, मैं तमाम रुतबा के बारे में बाएतमाद हूँ कि सारे फैसले ये लोग बहुत मुखलिस अंदाज में करते हैं। सब बहुत मोहतरम लोग, इनसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, आयता का मेंबर सिर्फ चलता पुर्जा है, चलता फिरता है, तनख्वाह याफ्ता टीचर ही नहीं होता। वो टीचर रह चुका हो, वो रिटायर्ड हो, वो KG to PG किसी मुकाम पर तदरीस की खिदमत अंजाम देता हो, ऐसे तमाम लोग आयता के इस कॉज के लिए काम करना चाहिए। अब आपने आगे अपनी आंखों से कुछ देखा कि हम कर क्या रहे हैं। हम इस काफले में आपको शरीक देखना चाहते हैं। हम खास तौर पर जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल आपकी आयटा में शिरकत के नतीजे में हल हो सकते हैं। ऐसे बड़े काम जो हम नौकरी में रहते हुए, हम मुलाजमत में रहते हुए नहीं कर सकते। आपसे हम, आप लोगों की मदद से हम NGOs की तरह से बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करते हुए हमारी कौम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। लिहाजा आयटा को आप रिटायर्ड अगर हो रहे हैं, आप पेशे से, आप अपने पेशे से अलग हो रहे हैं, ऐसा मत समझिए। आप आखिरी दम तक खिदमत कर सकते हैं, कौम को आपकी आखिरी दम तक जरूरत है। अल्लाह हमें अपने अपने एतबार से इस कौम की, इस वक्त को समझने की और कुछ करने की, ताकि आखिरत में हमारे लिए सादा और सामान बने, आखिरत में काम आए। इस काम के, इस रुझान के साथ हमें जिंदा रहने और हरकत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। शुक्रिया तो जवाब, जिस तरह से अवार्ड के बारे में बताया गया, अमीर मोहतरम ने भी ये बात कही कि हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलिशान है, इन्ना व बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इससे बड़ा एजाज कोई नहीं हो सकता। न कोई हुकूमत दे सकती है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, न दुनिया की कोई ताकत दे सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े एजाज से हमें सरफराज फरमा दिया ये कहते हुए, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये जो असातिज़ा को अवार्ड पेश किए जा रहे हैं, ये उनकी तालीमी खिदमत के एतराफ़ के सिलसिले में एक हमारी की अखलासी हकीक कोशिश है। इन कोशिशों के जरिए से हम असातिज़ा में हौसला, हिम्मत और मौलिका पैदा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और असातिज़ा में दियानत और इखलास को कूट कूट कर भर दे। अब तक़सीम इनामात का सिलसिला शुरू होगा। मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इत्मीनान रखें, अफरा तफरी का मुजाहरा न करें, अपनी नशिस्तों से न उठें। और मसूद साहब, फोटोग्राफर साहब, मेरे जो भाई हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हर अवार्ड याफ्तागान का 1 नहीं 2, 3, 4 फोटो ले लें ताकि खराब ना हो। उनको हम अपने फेसबुक पेज पे, हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे।
اس کو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر جائیں گے آپ تو آپ ہمارے لیپ ٹاپ سے بھی اس کو کاپی کر کے لے جا سکتے ہیں. یہ تھوڑی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں, اطمینان سے, کیونکہ اعزاز ہے, اعزاز کو اعزاز کے طریقے سے ہی پیش کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. محمد ضیاء الدین صاحب, ایس اے میتھ, زیڈ پی ایس ایس اردو میڈیم, اچوڑا منڈل, اچوڑا ڈسٹرکٹ, عادل آباد. ہمارے مہمان خصوصی جناب مظفر علی شہری صاحب, وائس چانسلر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول, آندھرا پردیش کے ہاتھوں سے انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی. محمد ضیاء الدین صاحب, ایس اے میتھ, زیڈ پی ایس ایس اردو میڈیم, اچوڑا, عادل آباد ڈسٹرکٹ کو اعزاز سے سرفراز کیا جا رہا ہے. میں جناب محمد رحمان گوری, ایس اے اردو, جی ایچ ایس عربی اردو, سرپور, کالم نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر میں تشریف لائیں. محمد رحمان گوری, ایس اے اردو, جی ایچ ایس عربی اردو, سرپور, کالم نگر منڈل, کالم نگر ڈسٹرکٹ کے بھی آصف آباد, ادھر سے تشریف لائیں. تھوڑا ادھر دیکھیے. تھوڑا تالیوں کی ذرا اپنی خوشی کا احساس فرمائیں, تالی بجا کر. جناب محمد رحمان گوری صاحب, ایس اے اردو, جی ایچ ایس عربی اردو, سرپور, کالم نگر منڈل, کالم نگر ڈسٹرکٹ کے بھی آصف آباد. محترم ڈاکٹر کبیر احمد صاحب, پرنسپل, مانو ماڈل اسکول, بہادرپور منڈل, حیدرآباد ڈسٹرکٹ. محترم ڈاکٹر کبیر احمد صاحب. تھوڑا صاحب ادھر دیکھیے, آپ لوگ ادھر دیکھیے صاحب. ڈاکٹر کفیل احمد صاحب, پرنسپل, مانو ماڈل اسکول, بہادرپور منڈل, حیدرآباد ڈسٹرکٹ. تھوڑا رفیق محترم محمد لاہب علی خان صاحب, گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر, گورنمنٹ سٹی بوائز ہائی اسکول, لاڑوکار, بہادرپور منڈل, حیدرآباد ڈسٹرکٹ سے میں ادب مطلب ہوں کہ وہ سینیشن پر تشریف لائیں. صاحب ادھر دیکھیے, آپ لوگ ادھر دیکھیے صاحب. جناب محمد لاہب علی خان صاحب, گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر, گورنمنٹ سٹی بوائز ہائی اسکول, لاڑوکار, بہادرپور منڈل, حیدرآباد ڈسٹرکٹ. محمد لاہب علی خان صاحب کو اعزاز سے سرفراز کیا جا رہا ہے. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی خوشی کا اور مسرت کا اظہار فرمائیں, تالی بجا کر. محترم عبد الرحیم نعیم الدین صاحب, ماسٹر ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ, انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی, مہدی پٹنم, حیدرآباد سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ چینل میں تشریف لائیں. عبد الرحیم نعیم الدین, ماسٹر ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ, انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی, مہدی پٹنم, حیدرآباد کو اعزاز سے سرفراز کیا جا رہا ہے.
मोहतरमा तस्लीम बेगम साहबा एसडीडी एमपीपीएस उर्दू मीडियम गांधी चौक मनपट्टी मंडल मनपट्टी डिस्ट्रिक्ट से गुजारिश की जाती है कि शहर में तशरीफ लाएं। मोहतरमा अस्मा तरीन साहबा लेडी कन्वीनर आइडा तेलंगाना से गुजारिश की जाती है वो भी शहर में तशरीफ लाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि वो बाद में अपने ग्रुप के साथ फोटो लें, अफरा तफरी से महफूज रखें शहनशीन को। मोहम्मद मुकीमुद्दीन साहब एसडीडी एमपीपीएस उर्दू मीडियम चेलगल जगतियाल रूरल मंडल जगतियाल डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद मुकीमुद्दीन साहब तैयबा बेगम साहबा पीजीटी उर्दू टेबरीज गर्ल्स कामारेड्डी मंडल कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। मोहतरमा तैयबा बेगम साहबा से गुजारिश की जाती है कि शहरशीन में तशरीफ लाएं। मोहम्मद मुकीमुद्दीन साहब को एजाज से सरफराज किया जा रहा। सब थोड़ा जल्दी कीजिए। तैयबा बेगम साहबा पीजीटी उर्दू टेबरीज गर्ल्स कामारेड्डी मंडल कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। अस्मा मैडम से गुजारिश की जाती है कि वो भी शहरशीन पे ही रहें ताकि ख़वातीन को एजाज देते वक्त आसानी और सहूलत हो। तैयबा बेगम साहबा पीजीटी उर्दू टेबरीज गर्ल्स कामारेड्डी। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम दुर्गमगड्डा करीमनगर। तैयबा बेगम साहब को एजाज से सरफराज किया जा रहा है। आप पीजीटी उर्दू टेबरीज गर्ल्स कामारेड्डी में बरसर खिदमत हैं। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम दुर्गमगड्डा करीमनगर। सैयदा बदर सुल्ताना एसए बायो साइंस जीजीएचएस उर्दू मीडियम स्टेशन रोड खम्मम मंडल खम्मम डिस्ट्रिक्ट। गुजारिश की जाती है कि शहरशीन पर तशरीफ लाएं। सब थोड़ा सामने देखिए। सैयदा बदर सुल्ताना एसए बायो साइंस जीजीएचएस उर्दू मीडियम स्टेशन रोड खम्मम मंडल खम्मम डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब एसए मैथ्स गवर्नमेंट एचएस उर्दू मीडियम वीरन्नापेट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल। मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब एसए मैथ्स गवर्नमेंट एचएस उर्दू मीडियम वीरन्नापेट मंडल महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर। अब्दुल रऊफ साहब एसए इंग्लिश जेडपीएचएस उर्दू टांडूर अशोक नगर मंडल टांडूर डिस्ट्रिक्ट मंचिलिया। तमाम अवार्डी से गुजारिश की जाती है कि ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ रखें। प्रोग्राम के इख्तिताम में ग्रुप फोटो वीसी साहब के साथ और मेहमानों के साथ एक ग्रुप फोटो बनवाई जाएगी। जनाब अब्दुल रऊफ साहब एसए इंग्लिश जेडपीएचएस उर्दू टांडूर अशोक नगर टांडूर मंडल मंचिलिया डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद नाजिम बाबा एसए मैथ्स जेडपीएचएस रामपुर निजामपेट मंडल डिस्ट्रिक्ट मेदक। मोहम्मद नाजिम बाबा। थोड़ा सामने देखिए सर। यस। मोहम्मद नाजिम बाबा एसए मैथ्स जेडपीएचएस रामपुर
निजामपेट मंडल मेरठ डिस्ट्रिक्ट। सैयद लतीफ पाशा एसडीडी एमपी यूपीएस अनंतराम मंडल नलगुंडा। सैयद लतीफ पाशा एसडीडी एमपी यूपीएस अनंतराम मंडल नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। दे देंगे तो यस सैयद लतीफ पाशा एसडीडी एमपी यूपीएस अनंतराम मंडल नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट को एजाज से सरफराज किया जा रहा है। जनाब खलील अहमद साहब एलएफए हेडमास्टर एमपी सीपीएस दमारी गिड्डा मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से गुजारिश की जाती है तो शहनशीन पे तशरीफ लाएं। खलील अहमद साहब एलएफए हेडमास्टर। TS12 EM 1689 जिस किसी की कार है वो प्रॉपर पार्किंग कर दें। पूरा रास्ता रुकावट का शिकार हो चुका है, ट्रैफिक जैम हो चुका है। अब TS12 EM 1689 जिस किसी की गाड़ी है वो मुनासिब तरीके से पार्किंग कर दे अपनी कार को। जमील अहमद साहब एसए बायोसाइंस ZPSS उर्दू मीडियम ओला कुंटला मंडल डिस्ट्रिक्ट निर्मल। जमील अहमद साहब तमाम अवार्डी से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो तशरीफ रखें। आखिर में एक ग्रुप फोटो ली जाएगी मेहमान खुसूसी और मेहमान आजादी के साथ। जमील अहमद साहब एसए बायोसाइंस ZPSS उर्दू मीडियम ओला कुंटला मंडल निर्मल डिस्ट्रिक्ट। मोहतरमा अहमदी बेगम एसडीडी MPPS उर्दू मीडियम पांडु फार्म बोधन मंडल डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद। अहमदी बेगम साहब को गुजारिश की जाती है तो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। अहमदी बेगम साहबा एसडीडी MPPS उर्दू मीडियम पांडु फार्म मंडल बोधन डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद बोधन मंडल। मोहम्मद जाफर साहब फिजिकल साइंस क्रिस्टियन हाई स्कूल पेदापल्ली मंडल पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद जाफर साहब फिजिकल साइंस क्रिस्टियन हाई स्कूल मंडल पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट पेदापल्ली। शबीर साहब से गुजारिश की जाती है कि मोहम्मद जाफर साहब का अवार्ड हासिल करें। मोहम्मद शबीर साहब। मोहम्मद इरशाद साहब एसए इंग्लिश ZPHS असदगंज गोगड़ापल्ली मंडल जहीराबाद डिवीजन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद इरशाद साहब एसए इंग्लिश ZPHS असदगंज मंडल गोगड़ापल्ली जहीराबाद डिवीजन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद वहीदुद्दीन साहब हिंदी पंडित सेंट जॉन्स हाई स्कूल कादरपुरा सिद्दीपेट मंडल सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मद वहीदुद्दीन साहब से गुजारिश की जाती है कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद वहीदुद्दीन साहब हिंदी पंडित सेंट जॉन्स हाई स्कूल कादरपुरा मंडल सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। आजा खलील अहमद खान साहब इससे हिंदी ZPHS दुराजपल्ली चीफ मेला मंडल डिस्ट्रिक्ट सूर्यापेट। आजा खलील अहमद खान साहब इससे हिंदी। मोहतरम जिस किसी की गाड़ी है TS12 EM 1689 बड़ी तकलीफ हो रही है, मुनासिब तरीके से पार्किंग कर दें, दूसरों को दिक्कत ना दें, जहमत ना दें। TS12 EM 1689
इनोवा कहाँ रही है? राजा खलील अहमद खान साहब ऐसे हिंदी ZPHS दुराजपल्ली चिवमला मंडल सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट। सैयद असदुल्ला साहब गजेटेड हेडमास्टर ZPHS उर्दू मीडियम सोर मामिडी सर बंटारा मंडल विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। तो मामिडी सैयद असदुल्ला साहब गजेटेड हेडमास्टर ZPHS उर्दू मीडियम गोर मामिडी बंटारा मंडल विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। सैयद हाजी पाशा साहब एसए फिजिकल साइंस GHS शंभूनी पेट किला वरंगल मंडल वरंगल डिस्ट्रिक्ट अर्बन। सैयद हाजी पाशा साहब एसए फिजिकल साइंस GHS शंभूनी पेट किला वरंगल मंडल डिस्ट्रिक्ट वरंगल अर्बन। तमाम अवार्डीज को ऑल इंडिया आईटी टीचर एसोसिएशन की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है और तमाम अवार्ड याफ्तागान से गुजारिश की जाती है कि वो शहर नशीब पे तशरीफ लाएं ताकि एक ग्रुप फोटो बनाई जा सके। तमाम अवार्ड याफ्तागान से गुजारिश की जाती है कि वो शहर नशीब पे तशरीफ लाएं ताकि एक ग्रुप फोटो बनाई जा सके। सैयद हाजी पाशा एसए फिजिकल साइंस को एजाज से सरफराज किया जा रहा है। तकसीम अवार्ड की तकरीब का इख्तिताम अमल में आता है। तमाम इनाम याफ्तागान से गुजारिश की जाती है कि डायस पर तशरीफ लाएं ताकि मेहमान खुसूसी और मेहमानान एजाजी के साथ ग्रुप फोटो बनाई जा सके। हदीय तशक्कुर के लिए ऑल इंडिया आईटी टीचर एसोसिएशन तेलंगाना के नायब सदर जनाब अजहर हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हदीय तशक्कुर पेश फरमाएं। मैं सारे जिले से दूर और खासकर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काम के नजर का बहुत इंतजाम किया। प्रोफेसर शहरी साहब, डॉक्टर आबिद मुई साहब, अनवर खान साहब, वीर हामिद मोहम्मद खान साहब और दीप मिताली साहब, सेक्रेटरी साहब और सारे जिले से दूर अवार्डीज का बहुत ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग